that is sequence and series. So in this lecture, we discussed some basic idea about the sequence, and afterward we start with the series. So first we start with the sequence. So when the sequence comes, so what is meant by sequence? तो हम उसकी definition देखेंगे पहले कि sequence मतलब क्या होता है. So here the definition is given as a sequence is a succession of the number or the terms. It is a succession of number, that is 1, 2, 3, or this is the terms, that is n plus 1, n plus 2, n plus 3, so on, form according to the some definite rule. मतलब वो सक्सेशन तो है, लेकिन उन दोनों टर्म में दो प्रीसीडिंग टर्म जो है उसमें क्या रहेगा, एक रूल रहेगा. जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9. That is the difference between two consecutive terms is 2. So that is a definite rule. So this type of succession is known as a sequence. The n terms of the sequence is denoted by Sn or Un. For simplicity, you can use any term, that is Sn, Un, or whatever you want. So if you take the example regarding this, if Un is equal to 2n plus 1, so here when you put n equal to 1, 2, 3, we get U1, U2, U3. So this is called the different term of the sequence, and this Un is called the nth term of the sequence, that sequence. The sequence has two types. One is definite sequence or finite sequence, and one is called the infinite sequence. So the sequence which is end at a certain point is known as a finite sequence, and the sequence having the unlimited number of terms is known as an infinite sequence. The sequence which never ends is known as an infinite sequence. जो sequence कभी भी end नहीं होगी, उस series को क्या, वो sequence को क्या बोलेंगे हम, infinite sequence बोलेंगे. जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, तो नंबर 8, 3, 5, 7, 9, 11, 13, वो चलते जाएगा, कभी end नहीं होगा. तो end नहीं हो रही मतलब इस sequence को क्या बोलेंगे हम, infinite sequence. So this is about the sequence. Sequence is nothing but the succession of the numbers of term formed according to the some definite rule. So this is the example of the sequence. Now next topic is about the limit of the sequence. So what is called the limit? So if we find the limit of the sequence at n tends to infinity, and if the limit is exist, then this L is known as a limit of the sequence. If the sequence tends to limit L, then we write this. So actually लिमिट होने के लिए क्या चाहिए, एग्जिस्ट चाहिए. तो अगर यूएन की एन टेंस टू इंफिनिटी कुछ वैल्यूज आती है, तो वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस. नाउ व्हेन वी कम्स विद द सीक्वेंस, सो देयर आर एक्चुअली टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द सीक्वेंस. वन इज कॉल्ड द कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड वन इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट सीक्वेंस. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस. सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब होता क्या है कि इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज फाइनाइट, देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. तो अगर आप सीक्वेंस की लिमिट निकालेंगे एन टेंड्स टू इंफिनिटी, और अगर वो आंसर कुछ जो लिमिट आएगा वो आंसर कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, फाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं, तो उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस. सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इफ un इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर. Now when we find the limit of un n tends to infinity, we get 1/n square n tends to infinity, and we know that 1/infinity square is 1/infinity, and 1/infinity is 0, and 0 is a finite number because we count as 0. So 0 is a finite number which is a countable, so it is a finite quantity. So limit exists and which is finite, then the sequence is convergent. So therefore un is said to be a convergent sequence. Next is divergent sequence. So actually जो convergent का है वो उल्टा होगा. अगर लिमिट फाइनाइट है, अगर आपने लिमिट फाइंड की और वो फाइनाइट निकलती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वर्जेंट. अगर वो लिमिट इनफाइनाइट आती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाइवर्जेंट सीक्वेंस. तो इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस डज नॉट टेंड्स टू फाइनाइट नंबर, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट. एक और एग्जांपल दिया हमने, un is equal to 2n plus 1,
इसके हम लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी 2n plus 1 n टेंस टू इन्फिनिटी. The answer is infinite plus 1, that is infinite. So limit is not finite. Therefore, this sequence is called the divergent. Next definition is bounded sequence. So what is meant by bounded sequence? So if u1, u2, u3 up to un is a bounded sequence if un is less than or equal to k. तो अगर जितने भी टर्म है सीक्वेंस में वो सभी की वैल्यू अगर कुछ कांस्टेंट से कम है, मतलब उससे ज्यादा नहीं है, बाउंड है उसको, अपर बाउंड या लोअर बाउंड भी हो सकता है, तो दैट फॉर ईच n, for every n, the value of un is less than that constant number, then the sequence is said to be bounded sequence. Next is definition is monotonic sequence. So when we call the sequence is monotonic, the sequence is either increasing or decreasing. Such sequence are called as monotonic sequence. मतलब मोनोटोनिक सीक्वेंस हमेशा क्या रहेंगे, वो तो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस रहेंगी या तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस रहेंगी. एग्जांपल लेंगे कुछ हम 1 4 7 10 अप टू सो ऑन. यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर इंक्रीज हो रहे, इसीलिए ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये मोनोटोनिक हो गई. 1 1/2 1/3 1/4 ये देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो रही, मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसीलिए ये भी कौन सी है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है. थर्ड नंबर का एग्जांपल है 1 -1 1 -1. यहाँ पे इंक्रीज भी नहीं हो रहा, डिक्रीज भी नहीं हो रहा, एक डिक्रीज होता बाद में और इंक्रीज होता, मतलब ये दो वैल्यू पे ही डिपेंड है, कांस्टेंट है. 1 के बाद -1 आएगा, -1 के बाद 1 आएगा, तो इसको इंक्रीजिंग भी नहीं है ये सीक्वेंस और डिक्रीजिंग भी नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे. सो देयरफॉर इट इज नॉट अ मोनोटोनिक सीक्वेंस. अब ये मोनोटोनिक और बाउंडेड लेने के पीछे एक रीजन ये है कि एक हमारे पास रिमार्क है. इस रिमार्क का यूज करके भी हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करती है, एसन विद एनी सीक्वेंस which is monotonic means it is either increasing or decreasing and it also bounded, then the sequence is directly said to be convergent. The remark is the sequence which is monotonic and bounded is a convergent sequence. Next, based upon this, we take some example of the sequence, and here we have to find the sequence is convergent or divergent. So I recall all the points. So main point are that when the sequence is convergent, if we find the limit of the sequence, then the sequence is said to be convergent. And if the limit is infinite, then the sequence is said to be divergent. So there are only two conditions. Limit is finite, then the sequence is convergent, और जो लिमिट रहेंगी उसको क्या बोलेंगे हम, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं है, मतलब इनफाइनाइट है, तो सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट. और अगर डाइवर्जेंट है तो उसको लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं रहेंगी, तो उसमें लिमिट निकालने का कुछ काम नहीं है. सो एग्जाम्पल है हमारे पास, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. इफ द सीक्वेंस कन्वर्जेंस डिटरमाइन इट्स लिमिट, क्योंकि लिमिट तभी निकलेगी जब वो रहेंगे कन्वर्जेंस. सो देयर आर द फोर एग्जाम्पल. One is un equal to this, second, third, and fourth. We solve all the problem one by one. So we consider only first problem. So solution. So let un equal to 3n square minus 1 upon 10n plus 5n square. So सीक्वेंस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखाने के लिए हमको क्या सिंपली क्या करना है, हमको सिर्फ उसकी लिमिट निकालना है, और लिमिट निकाले हमको n टेंस टू इंफिनिटी. सो हियर वी टेक द लिमिट ऑफ un n टेंस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी 3n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 10n प्लस 5n स्क्वायर. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, सो वी गेट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो ये डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इनडिटरमाइंड फॉर्म होगा. लेकिन आपको आप देखेंगे तो ऊपर भी n का हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे भी n का हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ से n स्क्वायर, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकालकर हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, वहां पे n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर कॉमन
So we get 3 minus 1 by n square upon n square कॉमन, वी गेट 10 by n. यहां से n स्क्वायर तो एक ही n है, तो एक n यहां पर बचेगा प्लस 5. नाउ n square गेट कैंसल. नाउ वी पुट द लिमिट. सो 3 minus 1 upon infinite square, that is 1 upon infinity, upon 10 upon infinity plus 5, which is equal to 1 upon infinity is 0, 1 upon infinity is 0. So answer is 3 by 5. Answer is 3 by 5. मतलब this answer is finite. तो un का लिमिट जो हमने निकाला वो आ गया फाइनाइट. और हमने अभी देखा है कि इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी कॉन्वर्जेंट. सो देयरफॉर हम यहां पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर un इक्वल टू 3n square minus 1 upon 10n plus 5n square is convergent. और उसकी लिमिट भी निकालनी थी, एंड इट्स लिमिट इज, तो इसकी लिमिट मतलब जो आंसर आया, क्या आंसर है हमारा 3/5. सो इट्स लिमिट इज 3/5. सो हमारे पहला प्रॉब्लम हो गया कि ये जो पहला प्रॉब्लम था ये क्या है, कॉन्वर्जेंट है, और कॉन्वर्जेंट होने के बाद इसकी लिमिट क्या है, 3/5. सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल हमारा e raised to the power 2n upon n. So let un equal to e to the power 2n upon n. अगेन हमको वही काम करना है, लिमिट निकालना है. सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ un is equal to limit of e to the power twice n upon n tends to infinity. एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे आप तो ऊपर भी n है नीचे भी n है, लेकिन ऊपर के n को हम कॉमन नहीं निकाल सकते जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में लिया. और अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो इन्फिनिटी, e raised to the power infinity इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो ये हो गया इनडिटरमाइंड फॉर्म. तो इसको हम बोल सकते हैं, हम ये है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. और आपको मालूम है बराबर कि इनडिटरमाइंड फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं. सो व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इनडिटरमाइंड फॉर्म वी यूज एल हॉस्पिटल रूल. सो बाय एल हॉस्पिटल रूल वी कैन फाइंड इट्स आंसर. सो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि ऊपर के टर्म का आपको डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ट्वाइस n इज e टू द पावर ट्वाइस n इंटू ट्वाइस n का डेरिवेटिव 2 और n का डेरिवेटिव हो गया 1. सो बाय एल हॉस्पिटल रूल लिमिट पुट करो. लिमिट पुट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, 2 और e टू द पावर इंफिनिटी विच इज इक्वल टू इंफिनिटी. मतलब आंसर क्या है हमारा, इनफाइनाइट. सो देयरफॉर un is equal to e to the power 2s upon n is divergent. बिकॉज लिमिट इसकी इनफाइनाइट है. लिमिट अगर फाइनाइट होगी तो क्या होगा, वो कॉन्वर्जेंट. लेकिन लिमिट फाइनाइट है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट. एक और प्रॉब्लम लेंगे हम, नंबर 3. नंबर 3 प्रॉब्लम है हमारे पास un इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n अपॉन n. थर्ड प्रॉब्लम है -1 रेज़ टू द पावर n अपॉन n. अब एक्चुअली कंसेप्ट के हिसाब से देखेंगे तो हम इसको डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि -1 का पावर n है और -1 का पावर n है, तो वो लिमिट वहां पे कहीं पर जाएगा या नहीं जाएगा वो हम नहीं दे सकते. लेकिन यहाँ पर आपको एक रिजल्ट मालूम है. एक रिजल्ट इस टाइप का है कि अगर लिमिट ऑफ मॉड ऑफ an n टेंस टू इंफिनिटी अगर ये 0 आता है, इसका मीनिंग क्या होगा कि लिमिट ऑफ an n टेंस टू इंफिनिटी भी 0 हम लिख सकते हैं. तो थोड़ा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्रिक्स अलग है. एक्चुअली मैथमेटिकली आप डायरेक्ट करेंगे तो भी इसका आंसर आएगा, लेकिन ये -1 -1 +1 -1 ऐसे टर्म
अल्टरनेट चेंज होती जाएंगी, तो लिमिट में क्या होगा वो हम अभी बोल नहीं सकते। तो आप अभी का ये जो थ्योरम है वो ध्यान में रखो कि लिमिट ऑफ मॉड ऑफ ए एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो अगर आंसर है, तो लिमिट ऑफ ए एन भी क्या रहेगा, उसका आंसर जीरो ही रहेगा। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, मॉड यू एन कंसीडर करेंगे हम। सो कंसीडर मॉड यू एन। सो मॉड यू एन आने के बाद ये हो जाएगा हमारा आंसर मॉड ऑफ वन रेज टू द पावर एन अपॉन एन। सो दिस कैन बी रिटन एज, मॉड में अगर निगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमको मिलेगा वन अपॉन एन। और अगर हम इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ यू एन एन टेंस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ वन अपॉन एन एन टेंस टू इंफिनिटी, द आंसर इज वन अपॉन इंफिनिटी विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये थ्योरम हम इसीलिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका आंसर हमारा जीरो आ गया, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, जीरो। सो देयरफॉर लिमिट ऑफ यू एन एन टेंस टू इंफिनिटी is equal to limit of minus 1 raised to the power n upon n, n tends to infinity is also 0। और आंसर अगर जीरो आ गया तो जीरो मतलब क्या है, फाइनाइट नंबर है, सो इट इज अ फाइनाइट। सो देयरफॉर यू एन इक्वल टू माइनस वन रेस टू द पावर एन अपॉन एन इज कॉन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट इज जीरो। सो ये थर्ड प्रॉब्लम भी यहाँ पे हो गया। और एक लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, लास्ट प्रॉब्लम है माइनस वन रेस टू द पावर एन का, यू एन इक्वल टू माइनस वन रेस टू द पावर एन। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम, लेट यू एन इक्वल टू माइनस वन रेस टू द पावर एन। अब एक्चुअली अभी इसका नेचर आप देखेंगे तो यूएन जो है ना, यूएन की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन अप टू सो वन, इस टाइप की मिलेगी। कोई भी वैल्यू लो, अगर यन अगर इवन होगा तो प्लस वन रहेगा, यन अगर ऑड रहेगा तो माइनस वन रहेगा। तो कुछ भी करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ यू एन एन टेंस टू इंफिनिटी, इसके हमको दो आंसर आएंगे, एक आएगा वन, एक आएगा माइनस वन, क्योंकि वो दो ही वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसके आप लिमिट लेंगे तो आपको दो ही आंसर मिलेंगे, वन और माइनस वन। दोनों तो फाइनाइट है, विच इज फाइनाइट बट नॉट यूनिक। फाइनाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सीक्वेंस में देखा है कि लिमिट अगर फाइनाइट है तो वो सीक्वेंस क्या रहेंगे, कॉन्वर्जेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस की लिमिट तो फाइनाइट है लेकिन तभी भी एक कॉन्वर्जेंट नहीं है, बिकॉज आपको सीक्वेंस की लिमिट जो है, लिमिट इज फाइनाइट और यूनिक भी चाहिए, आपको लिमिट का आंसर एक ही चाहिए, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पर लिमिट यूनिक नहीं है, सो देयरफॉर यू एन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू द पावर एन इज डाइवर्जेंट। ये सिंपल कुछ प्रॉब्लम है बेस्ड अपॉन द सीक्वेंस। तो आपको सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि अगर आपकी लिमिट निकलती है और अगर वो यूनिक है तो सीक्वेंस क्या रहेगी, हमेशा कॉन्वर्जेंट रहेगी। और अगर आपकी सीक्वेंस की लिमिट नहीं निकलती है, मतलब इन्फिनाइट होगी, या निकलने के बाद एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो उस टाइप में वो प्रॉब्लम क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ये हो गया सीक्वेंस का। सीक्वेंस मतलब क्या, what is the convergent sequence, what is meant by divergent sequence, what is meant by bounded sequence, monotonic sequence, how to check the sequence for convergence and divergence। so आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। so thanks for watching।